I'm going to teach you how to, overcome the mountains which come in your life. आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार अपने जीवन में आने वाले सारे पहाड़ों पर आप विजयी हो सके, उसे पार कर पाए। Mountains, what are actually mountains? और ये बड़े विशाल पहाड़ क्या है? In our lives, we all go through certain experiences which are very huge and unsurmountable. और हमारे जीवन में कई सारे अनुभव ऐसे आते हैं जो बड़े पहाड़ों के समान है, जिसे हम सोचते हैं कि पार नहीं कर पाएंगे। When people come to the mountain, they cannot cross, they stay back there, they return. जब लोग इन पहाड़ों के सामने पहुंच जाते हैं तो वो नहीं जानते कि कैसे पार कर पाए और वहां से वापस लौटते हैं। So in our lives also, mountains come. तो हमारे जीवन में भी ऐसे पहाड़ आते हैं। So what we have to do when mountains come, what to do? तो क्या करना होगा हमें जब ये पहाड़ आते हैं? Okay. When mountains come, usually what we do? आमतौर पर ये जब पहाड़ आते हैं तो हम क्या करते हैं? Usually what we do when big problems come. अगर बड़ी परेशानी हमारे जीवन में आते हैं तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? Pray. See, he is a very holy man. He is praying. ये पवित्र व्यक्ति है, वो कहता है कि वो प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करते हो? Take out this mountain. प्रभु ये सारे पहाड़ों को निकाल दे। That's what we do. यही हम करते हैं। Some people are very connected people. कुछ लोग बहुत अच्छा संपर्क उन्होंने बनाए रखा है। वो क्या करते हैं? They tell everybody. वो सभी से कहते हैं। And they all pray. और वो सारे प्रार्थना करते Pray हैं। for me. और वो मेरे लिए प्रार्थना करो। They have a prayer circle. और बहुत प्रार्थना के एक बड़े झुंड हैं। And they pray. और वो प्रार्थना करते हैं। See, it looks very nice. It's very holy. ये बहुत अच्छा दिखता है, बहुत पवित्र भावना लगती है। But let me tell you, mountains will not go when you pray. लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जब आप प्रार्थना करते हो तो ये पहाड़ नहीं जाने वाले। Many people think mountains will go when we pray. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये पहाड़ निकल जाएंगे अगर हम प्रार्थना करेंगे। Like today I will teach you how the mountains are going to go away. लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार ये पहाड़ आपके सामने से निकल जाएंगे। So we all have mountains in our life. हम सभी के जीवन में ऐसे पहाड़ हैं। Okay. Tell your neighbor, today I am going to learn how to kick the mountain out of my life. अपने पड़ोसी से कहे कि आज मैं सीखने वाला हूं कि कैसे इस पहाड़ को लात मारकर मैं पार कर लूं। Okay. Let us turn to Mark chapter 11. मरकुस का सुसमाचार 11वां अध्याय। Mark chapter 11. मरकुस 11 verse 20. 20वां वचन। Mark 11:20. Here is a small incident which happened in the life of Jesus Christ. यीशु मसीह के जीवन में घटी हुई एक घटना यहाँ लिखी है। In the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, remembering, said to him, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away. So Jesus answered and said to them, have faith in God. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them. You read 22 and 24. 22, 23, 24. और 22वें वचन से मैं पढ़ूंगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरना प्रतीति करे कि जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। See, this is an incident where Jesus was going with his disciples. There was a fig tree which was not giving any fruit, and Jesus cursed the fig tree, and nothing happened. और वहां पर यह एक घटना है, जब यीशु रास्ते से गुजर रहे थे, उन्हें भूख लगी, वो एक अंजीर का पेड़ देखते हैं लेकिन कोई फल नहीं दिखता है, तो उसे श्राप देते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है उस समय। But the next day when they were passing the same way, they saw the fig tree is withered away. लेकिन अगले दिन जब उसी रास्ते से वो गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि ये जो अंजीर का पेड़ है वो पूरी तरीके से सूख गया है। So
People were really astonished about how this can happen. तो लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो सकता है. So Jesus is teaching them something which is very deep and very useful for us also. तो यीशु उन्हें सिखा रहे हैं जो बहुत ही. Verse 22. और 22वां वचन. Jesus answered and said to them, have faith in God. और यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो. Okay. Can someone read it in Young's Literal Translation? अगर आपके पास यंग्स लिटिल ट्रांसलेशन है तो आप कृपया उसे निकाल कर पढ़े हैं. Can you read it in Young's? And Jesus answering said to them, have faith of God. Have the faith of God. और परमेश्वर का विश्वास रखो. He didn't say have faith in God. और वो ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो. Today everybody have faith in God. आज सारे लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं. But Jesus said have the लेकिन यीशु ने क्या कहा? of God. परमेश्वर का विश्वास रखो. Now God's faith, what is God? अब ये परमेश्वर का विश्वास क्या है? Jesus said something one step extra. और Have ये faith of God. यीशु ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि परमेश्वर का ही जो विश्वास है वही आप भी रखे. Now what is the faith of God? अब ये परमेश्वर का वो विश्वास क्या है? Faith of God. Let us see the faith of God. हम ये देखेंगे कि परमेश्वर का ये विश्वास क्या है. Romans chapter 4 verse 17. रोमियो की पत्री 4:17. Romans chapter 4 verse 17. What is the faith of God? रोमी 4:17 को हम देखेंगे कि ये परमेश्वर का विश्वास क्या है. Romans chapter 4 verse 17. रोमी 4:17. God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है. God calls things which do not exist. परमेश्वर ऐसी बातों को पुकारने लगता है कि जो वहां पर है ही नहीं. God calls things which do not exist. जो बातें हकीकत में वहां पर है ही नहीं उन बातों को वो नाम लेकर पुकारता है. God calls things which do not exist. और जो बातें वहां पर है ही नहीं ऐसों को वो पुकारता है. That is the faith of God. और यही परमेश्वर का विश्वास है. How can you call things which you do not exist? आप कैसे उन बातों को पुकार सकते हो जो हकीकत में है ही नहीं? It's not there. वो वहां पर है ही नहीं. How can you call? आप उसे कैसे बुलाओगे? That is the faith of God. और यही परमेश्वर का विश्वास है. What is the faith of God? परमेश्वर का विश्वास क्या है? Faith of God is to call things which was not there. और जो बातें वहां पर हकीकत में है ही नहीं इन बातों को पुकारना ही परमेश्वर का विश्वास So है. today Jesus told them, my friends, have the faith of God. और आज यीशु उनसे कह रहा है कि दोस्तों तुम परमेश्वर का विश्वास रखो. You should have the faith of God. आपको परमेश्वर का वो विश्वास जो है उसे रखना है To bring in the kingdom of God. ताकि आप परमेश्वर के राज्य को लेकर आए. If you don't have the faith of God, you cannot bring the kingdom of God. अगर आप में वो परमेश्वर का विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर के राज्य को नहीं ले आ पाओगे. People are full of fear. लोग भय से भरे हुए हैं. I'll tell you, when you are full of fear, you should not pray. अगर आपके हृदय में भय भरा हुआ है तो आप कृपया प्रार्थना न करें Because it's a waste of time. क्योंकि वो समय की बर्बादी होगी. Prayer without faith is useless. और विश्वास के बिना प्रार्थना करना व्यर्थ है. Your prayer with fear is what use? अगर भय से भरा हुआ कोई प्रार्थना करता है तो इसका क्या उपयोग? Is it useful? क्या इसका कोई फायदा है? The prayer without faith is useless. अगर बिना कोई विश्वास प्रार्थना करता है क्या इसका कोई भी फायदा है? Fear and faith cannot go together. और डर और विश्वास दोनों साथ चल ही नहीं सकते. So when the moment fear strikes, you can't have faith. अगर डर हमला करता है तो आप वहां कुछ नहीं कर पाओगे. When you cannot have faith, you can't pray. अगर आप में कोई विश्वास नहीं तो आप प्रार्थना नहीं कर There are सकते. many things will be just cut off from your life. कई सारी बातें आपके जीवन से पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगी. Jesus told them, have the faith of God. यीशु ने उनसे कहा कि परमेश्वर का विश्वास रखो. Now tell your neighbor, have the faith of God. अपने पड़ोसी से आप कहे कि परमेश्वर का विश्वास तुम भी रखो. Have the faith of God.
परमेश्वर का वो विश्वास तुम भी रखो। Huh? Dear people, you should have the faith of God. और प्रिय लोग, आप परमेश्वर का विश्वास रखें। Check your faith. अपने विश्वास को जांच कर देखें। Check is who. Your faith is whose faith. आपका विश्वास किसके समान विश्वास है? Don't have somebody's faith. किसी अन्य व्यक्ति के विश्वास को आप अपने भीतर ना रखें। Jesus said, have this man, great man's faith. क्या यीशु ने ये कहा कि इस महान व्यक्ति के विश्वास को तुम अपने हृदय में रखना? वैसे ही Have the faith of God. आप परमेश्वर का विश्वास रखें। बहुत अच्छे उदाहरण हमारे जीवन में हैं। Definitely. You निश्चित can तौर पर। imitate them. You can follow them. You can listen to them. और You उन- should have the faith of God. उन लोगों की आप नकल कर सकते हो, उन लोगों को आप अनुयायी बन सकते हो, लेकिन आपको विश्वास, परमेश्वर का ही विश्वास उसी समान आपको रखना है। And Jesus is continuing. अब यीशु आगे बातें बता रहा है और कह रहा है, Assuredly I say to you. और निश्चित तौर पर मैं तुमसे कहता हूं, Assurance. और निश्चित तौर पर। Many people don't give any assurance. और बहुत से लोग ऐसे कोई निश्चय देते ही नहीं। Warranty है, no warranty. अब हम पूछेंगे अगर कोई वारंटी No है इसका, guarantee. तो बोले कुछ वारंटी कुछ गारंटी नहीं No है, assurance. और कोई भी निश्चय है ही नहीं। Assuredly I say to you, whoever says to this mountain. और निश्चित तौर से मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस पहाड़ से कहता है, When you see a mountain, आप जब एक पहाड़ को देखते हो, you should know why a mountain comes in. आपको जानना है कि यह पहाड़ आपके जीवन में क्यों आया है। Huh? How many people have some sort of a mountain in front of you? कितने लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे पहाड़ आपके सामने हैं, आपको लगता है This message is for you. यह संदेश आपके लिए ही है। You know, a mountain stops you. आप जानते हो, ये पहाड़ ऐसी चीज है जो आपके जीवन में आपको एक रुकावट दे देती Many है। people are not going forward because there is a mountain. बहुत से लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ा एक पहाड़ है। They are doing nothing. वो कुछ नहीं कर पा They रहे, are just trying to live their life. वो बस प्रयत्न कर रहे हैं कि अपने जीवन को ऐसे ही बिता लें, Because already there is a mountain. क्योंकि पहले से एक बड़ा पहाड़ हमारे सामने है। Whenever they get up, they see a mountain. जब भी वो उठ खड़े होते हैं तो वो इस बड़े पहाड़ को देखते So हैं, their life is stagnant. तो उनके जीवन जो है वहां अटक गई है। If your life is stagnant, maybe you are having a mountain. अगर आपके जीवन ऐसे अटक गई है, ऐसी एक परिस्थिति में है, तो शायद आपके जीवन में एक पहाड़ है। In life, many people are stagnant. जीवन में कई सारे लोग ऐसे रुकावट से भरे हुए They हैं do nothing. और वो कुछ नहीं कर पा They रहे are हैं, just alive. वो बस केवल जिंदा है। Every day they go to work and come back and go to work and come back. There is no increase. There is no, there is no going forward in their life. और हर दिन वो नौकरी पर जाते हैं, वापस लौटते हैं, जाते हैं, वापस लौटते हैं, उनके जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं। Today you need to stand up. लेकिन आज आपको खड़े होना है, Today you need to stand up. आज आपको खड़े होना है। If you don't deal with this mountain, there is no door in your life. अगर आप इस पहाड़ से सही व्यवहार नहीं करोगे तो आपके जीवन में कोई दरवाजा है ही नहीं। You need not pray when mountain comes to you. अगर पहाड़ आपके सामने आ जाता है तो आपको उसके लिए प्रार्थना नहीं करना है, Don't pray. प्रार्थना मत करिए। You can live a holy life, but आप- you need not pray for mountain and all. आप एक पवित्र जीवन जरूर बिता सकते हैं, Jesus लेकिन never said- कोई प्रार्थना नहीं करना है इस पहाड़ को निकलने के लिए। Jesus never said pray for a mountain. यीशु ने कभी नहीं कहा कि इस पहाड़ को निकालने के लिए प्रार्थना करो। He says, say it to this mountain. वो कहता है इस पहाड़ के सामने तुम कहो। Jesus had a habit of talking to things which don't have any life in it. और यीशु की ये आदत थी कि ऐसी वस्तुएं जिनमें कोई जीवन ही नहीं है उनसे वो बात कर पाए। He talked to the wind. वो ऐसे जो हवा बह रही थी उसके लिए प्रार्थना Is करता है। wind a living organism? क्या ये जो हवा बह रही है ये कोई जिंदा कोई चीज है? Can you talk to the wind? क्या आप ऐसे हवा की लहरों को आप बात कर सकते हैं? Can anyone talk to the wind? बात कर सकता है? Yeah, but Jesus talked to the wind. लेकिन यीशु इन हवाओं से बात Will करता है। anyone talk to the waves, water? जो लहरें बह रही हैं उनकी तरफ देखकर कोई बातें करता है, Jesus talked to the waves. लेकिन यीशु उन लहरों को देखकर बातें करता है। Anybody will talk to a tree? क्या कोई एक पेड़ से बात करता है? Tell me, anybody talk to a tree? क्या कोई भी कोई पेड़ से बात करता है? Jesus talked to a tree. लेकिन यीशु एक पहाड़ से बात करता है। Anybody talk to a fever? क्या कोई भी ऐसे बुखार से वो बातें करता है? Anybody talk to a diarrhea, loose motion? डायरिया लूज मोशन हुआ है तो क्या उससे कोई बात करता है? Anybody will talk? क्या कोई भी बात करता है? Jesus talked. लेकिन यीशु ने He बात rebuked किया, that fever. यीशु ने इस बुखार को डांटा। Anybody will talk to a pain?
क्या कोई भी कोई दर्द से बात करता है? Jesus talked to the pain. लेकिन यीशु ने उस दर्द के विरुद्ध बात किया। You can talk to an inanimate thing. और ऐसी कोई वस्तु जो जीवित है ही नहीं, उससे आप बात कर सकते हो, Because Jesus did it. क्योंकि यीशु ने किया। Now how logic it is, how scientific it is, I don't know. It works, my friend. अब इसमें क्या बड़ी विज्ञान है, ये बातें मैं नहीं जानता, लेकिन ये कार्य करता है You दोस्तों। have the faith of God. आप परमेश्वर का ही वो विश्वास रखे। Don't have the faith of a critic. और जो व्यक्ति केवल गलतियों को निकालता है, उस व्यक्ति का आप नजरिया ना रखे। I have met some people, मैंने कुछ ऐसे लोगों से मैंने मुलाकात की है, interesting people. बहुत ही रुचात्मक लोग You हैं, can never impress them. और उन्हें कभी भी आप खुश नहीं कर सकते। कितना भी जोक मारा हंसेगा ही नहीं वो। They have come. I don't know what sort of species they are. और मैं नहीं जानता कि ये कैसे जंतु है। My friends, दोस्तों, don't have the faith of these critics. और ऐसे नकारात्मक बातें करने वाले लोगों की विश्वास ना रखें, Don't listen to them and follow them. और उनकी बातों को सुन के आप उनके अनुयायी ना बने। They have phrases and topics they talk. और ऐसे विषय है जिन पे वो बात करते हैं। Some of them they go to churches. और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कलीसियाओं में जाते हैं, They have a language. उनकी एक भाषा है, They have a critical language. और ऐसे नकारात्मक बातें करने हुई की एक भाषा ही है That उनकी, is a way to make fun of God. और परमेश्वर का एक मजाक उड़ाने की तरीका है ये। They make fun of the leaders in the church. और जो कलीसिया के अगुवे हैं उनका वो निंदा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, They make fun of the believers in church. और जो कलीसियाओं में विश्वासी हैं उनका वो मजाक उड़ाते हैं। My friends, दोस्तों, never ever have their faith. ऐसे लोगों का विश्वास आप अपने अंदर रखना ही You नहीं। have the faith of God. आप परमेश्वर के समान वो विश्वास को रखें, You talk to pain. और आप दर्द से बात करें, You talk to fever. आप बुखार से बात करें, You talk to your trees. और पेड़ों से बात You करें, talk to mountain. पहाड़ों से बात You करें, talk to rivers and water. नदियों से और पानियों से बात करें, You talk to your exam. आपके परीक्षाओं से बात करें, You talk to every opposition. और हर एक वो बात जो आपके विरुद्ध रुकावट बनकर खड़ी है उससे बात करें, You talk to, evil spirits. दुष्ट आत्माओं से बात करें। Jesus talked like that. और यीशु ने इस प्रकार बात की। You have to know. You need not pray about all this. और आपको जानना है कि आपको इस प्रकार प्रार्थना नहीं करना है। Nowhere in the life of Jesus Christ he ever prayed for a sickness. यीशु के जीवन में कभी भी ऐसे कोई बीमारी के लिए उन्होंने प्रार्थना नहीं की, Because in the churches, prayer for sick people is increasing. क्योंकि कलीसियाओं में बीमारों के लिए प्रार्थना करना ये तो बढ़ते ही जा रहा है। My friends, you need to be healed by faith. और दोस्तों, आपको विश्वास के द्वारा ही चंगाई पाना है। A child of God, he will not be healed by prayer. और परमेश्वर का एक संतान प्रार्थना से वो चंगाई नहीं पाता है। If you can be healed by faith, you cannot be healed by prayer. अगर आप विश्वास के द्वारा चंगाई प्राप्त करते हो तो वो प्रार्थना के द्वारा चंगाई नहीं पा सकोगे। You can be healed by faith. आपको विश्वास के द्वारा चंगाई पाना है। Please understand. इस बात को समझे आप। I can be healed only by faith. मैं केवल विश्वास के द्वारा ही चंगाई पाऊंगा, Otherwise, I have to be a sick man lifelong. नहीं तो मुझे एक बीमार व्यक्ति पर अपने पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा। I need to get up and use my faith. मुझे उठ खड़े होकर अपने विश्वास का इस्तेमाल करना होगा। My mountain मेरे be my health. मेरा पहाड़ शायद से मेरी सेहत है। Your mountain. What is your mountain? आपका पहाड़ क्या है? What has stopped you? किस चीज ने आपको रोक दिया है? What has stopped you from growth? आपकी बढ़ोतरी को किसने रोका है? Find out what has stopped you. आप ढूंढ निकाले कि आपको किस चीज ने रोका Something है। has stopped you. That is your mountain. अगर किसी चीज ने आपको रोका है तो वो आपका पहाड़ है। Till that mountain is there, you cannot go in the front. जब तक वो पहाड़ आपके सामने है आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। You need to finish with that mountain, then only you will grow. आपको इस पहाड़ के साथ सही व्यवहार करना होगा, फिर ही आप बढ़ पाओगे। However genuine you may be or whoever you may be, चाहे you आप need to deal with that mountain. चाहे आप कितने भी सच्चे व्यक्ति क्यों ना हो, कितने अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, आपको इस पहाड़ के साथ सही व्यवहार करना होगा। You need to deal with that mountain. और इस पहाड़ के साथ सही व्यवहार करना होगा। Jesus said, "Assuredly I say to you," Mark 11:23, मर- whoever
says to this mountain, be removed and be cast into the sea. और मरकुस 11:23 वचन ये कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। What you have to tell about the mountain? इस पहाड़ के विषय में आपको क्या कहना है? Today many people run around and describe the mountain, how big it is, how आज बहुत से लोग इधर उधर भागते हैं और वो ये विवरण करते हैं कि ये पहाड़ कितना विशाल है, कितना बड़ा है। Today many of us we talk things which glorify the devil. और आज हमें से कई लोग ऐसी बातें निरंतर करते हैं जो शैतान का तारीफ करता है। Coming back to this issue. और इस विषय पर हम वापस लौटेंगे। Whatever you say to this mountain. जो कुछ तुम इस पहाड़ से कहोगे। Today when mountains come in our life, we need to speak to the mountain. आज जब कोई पहाड़ हमारे जीवन में आती है तो हमें उस पहाड़ से बात करना है। Yes, whatever may be the problem you face, you have to speak to it. चाहे कोई भी परेशानी आप उसका सामना क्यों ना कर रहे हो, आपको इस पहाड़ से बात करना है। And does not doubt in his heart. और अपने मन में, हृदय में संदेह ना करे। Now, when you speak to your mountain, definitely doubt will come. और जब आप इस पहाड़ से बात करते हो तो निश्चित तौर पर इस संदेह आता है। Definitely your own mind will say, how can you be healed? निश्चित तौर पे आपका ही मन आपसे कहेगा कि तुम कैसे चंगाई Look at पाओगे। the doctor's report. ये देखो डॉक्टर का रिपोर्ट। See, the doubt will never become a real thing unless you say it. और ये संदेह जो है वो हकीकत में कभी भी बदल नहीं पाता जब तक आप कहोगे नहीं। My friends, doubts can come and go. और ये संदेह जो है ये आ सकता है, जा सकता है। But when you say it of faith, it will work. लेकिन जब आप विश्वास से कुछ बातें कहोगे तो वो बातें वही ऐसे ही घटेगी। That's what Jesus said in verse 24. और यीशु ने यही कहा 24वें वचन में, Therefore I say to you, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं whatever things you ask, कि जो कुछ तुम मांगोगे, when you pray, जब तुम प्रार्थना करते हो, believe that you receive them, विश्वास करो कि तुम्हें वो मिल गया है and you will have them. और फिर तुम्हें उसे पालोगे। Whatever you ask, जो कुछ तुम मांगोगे, believe that you will receive them. विश्वास कर लो कि तुम्हें वो मिल गया है, You will have them. वो निश्चित तौर पर तुम You will पाओगे। have them. तुम निश्चित तौर पर When पाओगे। you say to this mountain, the mountain will go. जब आप एक पहाड़ से कहोगे तो निश्चित तौर पर वो जाएगा। Huh? Mountain has to go. वो पहाड़ को जाना ही है। You pronounce a judgment on that mountain, it has to go. उस पहाड़ पर आप न्याय घोषित करें तो वो निश्चित तौर पर होगा। Okay? Sometimes the mountain stays there for some longer time. और कई बार ऐसे भी होता है कि वो पहाड़ कुछ और लंबे समय तक वहीं पर खड़ा रहता है। So you have to go to the next gear. तो आपको अगले गियर को डालना है। It's not that some problems go overnight. और कुछ परेशानियां ऐसी होती है जो एक ही रात में मिट जाती है। Some problem goes after a season. कुछ परेशानियां एक ऋतु के बाद ही जाती है। But what you say on the mountain has to go accordingly. लेकिन जो कुछ आप इस पहाड़ के विरुद्ध कहोगे उसे जाना ही है। Can we see what Jesus said? देखो यीशु क्या कहता है। Mark chapter 11 verse 23. मरकुस 11 उसका 23वां वचन। Mark 11:23. I am reading the last part of this sentence. उसके आखिरी जो वचन है उसे मैं पढ़ रहा I am हूं। reading from NKJV. But believes that those things he says will come to pass. He will have whatever he says. वो मन में संदेह न करे और वरना प्रतीति करे कि जो कहता है वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। Can we say it together? क्या हम साथ ही से कहेंगे? He will have वो वही पाएगा whatever जो कुछ says. वो कहेगा। He will have और वो वही पाएगा whatever जो कुछ he says. वो कहेगा। How Jesus Christ is talking. देखो यीशु कैसे बात कर रहे When हैं। you say to a mountain, जब आप एक पहाड़ से कहते हो you will have तुम वही पाओगे whatever जो कुछ you say. आप कहोगे। You will have तुम whatever. तुम वही पाओगे जो कुछ तुम कहोगे। Actually, mountains
are a great blessing in our life. और सच्चाई की बात यह है कि ये जो पहाड़ है हमारे जीवन में एक आशीष का कारण बनते हैं। Because if the mountains are not there, we may not have utilized our faith. We may not have done anything. क्योंकि शायद अगर ये पहाड़ हमारे जीवन में ना हो तो हम अपने विश्वास का इस्तेमाल ही ना करें, हम कुछ भी ना करें अपने जीवन में। But if a mountain is there, I make it sure it is gone. लेकिन अगर पहाड़ वहां पर है तो मैं ये निश्चित करता हूं कि वो वहां से निकल जाए। Now the mountain is still there. I am confessing, I am saying, you get out of my life, you get out of my life. Every day I say the Rima word, the word of God, the confession, but still it is there. अब वो पहाड़ वहीं पे है, रोज मैं उस पर घोषणा कर रहा हूं, वचन को उठा रहा हूं, बार बार घोषणा कर रहा हूं, लेकिन वो पहाड़ अब भी वहीं पर है। What you will do? आप क्या करोगे? Let us turn to Isaiah यशायाह का किताब chapter 40, 40वां अध्याय verse 3 to 5. 3 से लेकर 5 तक। Let us see. The voice of the one crying in the wilderness, preparing the way of the Lord, make straight in a desert a highway for our God. For every valley shall be exalted, and every mountain and hill brought low. The crooked places shall be made straight, and the rough places smooth. The glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken. Here it talks about your voice crying in the wilderness. और यहां पर एक ऐसे आवाज के बारे में बात कर रहा है जो जंगली स्थानों पर वो आवाज कर रहा है। This voice is crying night and day. और दिन रात ये आवाज अपनी पुकार को कर रहा है। Now this is not a voice on one day. और ये एक दिन का एक पुकार नहीं है, This is talking about a lengthy period of time. ये बहुत ही लंबे एक समय के बारे में बात कर रहा है। There are some mountains कुछ पहाड़ ऐसे हैं which will go away after a season of time. वो आपके जीवन में एक ऋतु बीतने के बाद ही निकलते हैं। It may not go overnight. वो एक दिन में नहीं बीतते हैं, It will go away certainly. लेकिन निश्चित तौर पर वो जाएंगे। Because Jesus has clearly said, whatever he says, he will get whatever he says. क्योंकि यीशु ने साफ कहा है कि जो कुछ तुम कहोगे उसी को तुम पाओगे। There are many problems in our life which takes a season. Many years it is there already. और कई सारी परेशानी हमारे जीवन में ऐसी हो सकती है जो एक ऋतु की उसकी आवश्यकता है, कुछ समय लगता है वो हमारे जीवन में। Here is a voice which is crying in the wilderness. लेकिन यहां पर एक आवाज के बारे में लिखा है जो अब जंगली स्थानों पर रो रहा है। And here it says, every mountain and hill will be brought low. और यहां पर लिखा है कि हर एक पहाड़, हर एक चट्टान उसे वो नीचा दिखा दिया जाएगा। Every crooked places shall be made straight. हर एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उसे सीधा बना दिया जाएगा। Okay? We were going in crooked places. Crooked places. हम ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से जा रहे थे For so many years. कई सालों के लिए, For so many years. कई सालों के लिए। And one day God brought us to a broad place. लेकिन एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने हमें बड़े चौड़े से एक स्थान पर लेकर आए। Broad place. ऐसे चौड़ा सा एक स्थान A mountain top. और एक पहाड़ के ऊपर। You can also go through crooked places. और आप भी शायद ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरे Narrow places. और ऐसे एक बहुत ही छोटी सी जगह पे। But as you keep on being a voice in the wilderness, लेकिन जब आप निरंतर ऐसी एक आवाज बनते हो जो इस जंगली स्थानों पर उठती है, definitely God will bring you to a broad place. निश्चित तौर पर परमेश्वर तुम्हें ऐसे एक चौड़े से स्थान पर, चौरस स्थान पर लेकर आएगा। Yes, let us turn to Isaiah 41. यशायाह 41वें अध्याय को देखेंगे, 41 verse 15 and 16. 15 और 16वें वचन को देखेंगे। Behold, I will make you into a new threshing sledge with sharp teeth. You shall thresh the mountains and beat them small. Make the hills like chaff. You shall winnow them. The wind shall carry them away, and the whirlwind shall scatter them. You shall rejoice in the Lord, and the glory of the Holy One of Israel.
देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाएं दाएं सूक्ष्म धूलि कर देगा और पहाड़ों को तू भूसे के समान कर देगा। तू उनको फटकाएगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु तू यहोवा के कारण मग्न होगा और इज़राइल के पवित्र के कारण बढ़ाई मारेगा। See, sometimes the mountains, you need to make it a powder. और कई बार ऐसे होता है कि ये जो पहाड़ है आपको उसे एक पाउडर के समान बना देना है। He will make your teeth like threshing sledge. वो आपके दांतों को ऐसे चोखा बनाने वाला एक यंत्र बना देगा। He will make like a machine. वो एक मशीन के समान आपके दांतों को बना देता है। Grind the mountain. वो आपको उस पहाड़ को आपको चूर चूर कर देना You have है to powder the mountain. और पहाड़ को आपको चूर कर उसे एक पाउडर के समान बना देना You are है। just saying, और केवल आप बातें नहीं कर रहे हैं mountain, you get out of. और पहाड़ यहां मेरे सामने से निकल जा। There is a lot of hard work you need to do. यहां पे कुछ मेहनत लग रही है आपको उस पहाड़ के You प्रति। need to grind the mountain. आपको उस पहाड़ को पीसना होगा You need to systematically dismantle the mountain. और धीरे धीरे करके आपको उस पहाड़ को चूर चूर करना होगा। Many problems which is in our life which requires we need to be like a threshing agent. अगर कोई भी परेशानी आपके जीवन में ऐसे आ रही है तो आपको ऐसे चूर चूर करने वाले एक एजेंट बनना है। You can't tell that mountain now you be plucked and go into the sea. आप उस पहाड़ को ऐसे नहीं कह सकते कि तुम यहां पर से उखड़ जाओ और समुद्र में जा गिरो। I'll tell you there are many mountains which you can command and it will leave. और मैं आपसे कहता हूं कि कई सारे पहाड़ ऐसे हैं आपके जीवन में जिसे जैसे ही आप आदेश देते हैं तो वो वहां से निकल पड़ता है। You give a command, next day it is gone. और आप एक आदेश देते हो और अगले दिन वो वहां पर है ही नहीं। But not all mountains are that way. लेकिन सारे पहाड़ उस समान नहीं है। There are many mountains which you need to powder it. और कई सारे पहाड़ ऐसे हैं जिसे आपको चूर चूर कर देना है। There are many issues you have to pray. और कई सारे परेशानी ऐसी है जिसे आपके प्रार्थना करनी है। Especially relationship problems. खास तौर पर रिश्तों के जो परेशानी है। If you have a misunderstanding with a close person. मान लो आपके करीबी किसी व्यक्ति के साथ आपके कोई समझ में कोई गड़बड़ी आ गई है। Okay. You can just निकाल देगा. ऐसे आसानी से आप नहीं निकाल You पाओगे। have to crush it. आपको उसे चूर चूर करना होगा। You need to crush the misunderstanding. और वो जो गलत समझी है वो आपको उसे निकालना You need होगा। to win their heart. उनके हृदय को जीतना होगा। You need to pray for it. There is a lot of effort you need to put. और बहुत परिश्रम आपको उसके पीछे लगाना होगा। Then only it is possible to connect to such people. फिर ही यह संभव होगा कि आप उन लोगों के साथ फिर से एक संपर्क बना सके। There are many issues in life. कई You सारे have to systematically work for a season. कई सारे परेशानी आपके जीवन में ऐसे हो सकते हैं जिसके प्रति आपको एक पूरे ऋतु निरंतर काम करते रहना होगा। That is hard work. वो बहुत मेहनत का काम है। Hard work. बहुत मेहनत का काम है। Yes. हाँ। When you do that, then that mountain will be powdered and it will get removed from your life. जब आप वो करोगे तो वो जो पहाड़ है आपके जीवन से बाहर ही निकल जाएगा। Yes. हाँ। My friends, today you have to know one thing. There cannot be a mountain present in your life. आज आपके जीवन में ऐसा कोई पहाड़ हो ही नहीं सकता जो आपके जीवन में है। Whatever may be the mountain, it should not be there. चाहे जो भी वो पहाड़ क्यों ना हो वो वहां पर नहीं होना चाहिए। I will talk against it. मैं उसके विरुद्ध बात करूंगा। I will work against it. उसके विरुद्ध मैं काम करूंगा। I will see that I will walk through that mountain. और मैं यह निश्चय करूंगा कि मैं इस पहाड़ के बार पार में निकल जाऊं। No mountain can stop a child of God. कोई भी पहाड़ परमेश्वर के एक संतान को नहीं रोक सकता। There cannot be a limitation in your life. और आपके जीवन में ऐसी कोई सीमाएं हो ही नहीं सकती। Cannot be there. ये नहीं हो सकती। God has never permitted us to be overtaken by a mountain. परमेश्वर ने कभी अनुमति नहीं दिया है कि हम ऐसे पहाड़ हम पर विजय हो सके। Whatever may be it costs, you have to cross and go across. चाहे वो कितना भी दाम क्यों ना चुकाना पड़े आपको उसके पार निकलना ही है। Defeat is not in the kingdom of God. और हार ये परमेश्वर के राज्य में है ही नहीं। Jesus Christ died on the cross यीशु मसीह क्रूस पर अपनी जान दी so that we can defeat every mountain.
ताकि हम हर एक पहाड़ पर विजयी हो सके। Yes. There was one man called Zerubbabel. जरुब्बाबेल नाम का एक व्यक्ति था। Now Zerubbabel was an ordinary slave और ये साधारण सा एक दास था in a foreign country. बाहरी एक देश में। Okay? He was not only a slave, he come from a family of slaves. और केवल वो नौकर नहीं था, उसके सारा परिवार ऐसे ही दासत्व में थे। Gulam, slave. That means he doesn't have salary. उसका मतलब है कि उनके कोई तनख्वाह नहीं थी, They will only give food. वो केवल भोजन देते थे Eat food and work. और वहां पे खाना है और काम करना है, That's called slavery. और इसी को हम गुलामी कहते You can हैं। never be away from that work. और आप उस काम से कभी भी दूर नहीं जा पाओगे। As long as you are alive, you have to be a जब slave. तक आप जीवित हो आपको वहां पे काम करना है। One day God came to him and God told him, hey, I have a plan for you. और एक दिन परमेश्वर उसके सामने आता है और कहता है कि एक योजना है मेरी तेरे विषय। You know what was the plan? क्या ये जानते हो कि योजना क्या है? योजना यह थी, Now there was a great king called Solomon. सुलेमान नाम का एक बड़ा राजा था He built a very magnificent temple. और बहुत ही बड़ा एक मंदिर वो बनाता है। You know about this, Solomon's temple. आप right? इस सुलेमान के मंदिर को जानते हो। And the Bible experts say he spent $1 trillion to build that temple. और बाइबल के जो विशेषज्ञ है वो कहते हैं कि $1 ट्रिलियन उसने खर्च किए थे उसे बनाने के लिए। Now trillion we don't talk, right? और ट्रिलियन के बारे में तो हम बात भी नहीं करते, Billion also we don't talk. बिलियन के विषय भी बात नहीं करते हैं। We talk billion. मुंबई में million चलता है. Lot of millionaires are there. और कई सारे ऐसे लखपति है। So this guy was built one big temple with $1 trillion. अब Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him. Can you go one verse before? See, this is the temple. Jesus Christ was looking at all his disciples. See this. Yeah, 24:1. Jesus went out and he saw the temple. This is the temple. You know this temple was where Jesus Christ was worshipping, going. Huh? I tell you, that was built by who? Not Solomon. और ये जो मंदिर के विषय यहाँ पे लिखा है, जहाँ पे यीशु जाके आराधना करते थे, उसे राजा सुलेमान ने नहीं बनाया था। It was built by Zerubbabel. जेरुब्बाबेल ने उसे बनाया था। You saw? क्या देखते हो? Zerubbabel was, slave, जेरुब्बाबेल एक साधारण सा गुलाम था, but God used him. लेकिन परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। And you know what God told? क्या आप जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा उससे? Let us turn to Zechariah जकरिया की किताब को देखो, chapter 4, चौथा verse 6 to 7. 6 और 7। This is the word of the Lord to Zerubbabel. Can we read it together? क्या हम इसे साथ पढ़ेंगे? This is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel, you shall become plain, and he shall bring forth the capstone with shouts of praise, praise. Amen. You saw? आप देख रहे हो क्या लिखा है? He didn't tell the mountain, go and fall in the sea. और उसने पहाड़ से ये नहीं कहा कि जाकर उखड़ जा और समुद्र में गिर जा। He powdered उसने उसको पाउडर बना दिया and he made it a plain. और वहां पर एक मैदान सा बना दिया। उसमें रोड डाला, हाईवे डाला. He used his faith. उसने अपने विश्वास का इस्तेमाल किया, He used his mouth. अपने मुंह का इस्तेमाल किया, He used his faith. अपने विश्वास का इस्तेमाल किया। My friends, दोस्तों, you may be a Zerubbabel in your life. आप शायद से अपने जीवन में एक ज़रुब्बाबेल हो। You may not build Solomon's temple, but something you are going to build. शायद से कोई बड़ा मंदिर आप नहीं बांध रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ आप बांधोगे। Let me tell you. Who are you, O great mountain?
और तुम कौन हो इन विशाल पहाड़? Now Heavenly Father is asking, who are you? You mountain. अब स्वर्गीय पिता पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो पहाड़? We ask each other, who are you? हम एक दूसरे से पूछते हैं ना, तुम कौन हो? Mountain, we ask like that. क्या कोई पहाड़ से हम ये सवाल पूछते हैं? But let me tell you, these mountains need to be addressed. लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि इन पहाड़ों से ये सवाल आपको पूछना। First of all, you have to address your problem. पहले तो आपकी जो जीवन की परेशानी है, उनसे आपको सही बातें You have करनी है to crush your problem. और अपनी परेशानी को अपने जीवन से चकनाचूर कर लेना है। Not by might, ये कोई सामर्थ्य से नहीं, not by power, ये कोई ताकत से नहीं, but by the Holy Spirit, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा, by your faith. आपके विश्वास के द्वारा, You can crush every mountain. और आप हर एक पहाड़ को चकनाचूर कर सकते हो। Today, my friends, आज दोस्तों, as we are standing in front of an open door, जैसे हम एक खुले दरवाजे के सामने खड़े हैं, I also feel India is an open door for Jesus Christ. और मुझे ये भी लगता है कि भारत देश ये यीशु मसीह के लिए खुला दरवाजा है। When people are missing it, but you can build this beautiful country into और- the kingdom of God. जब लोग इसे समझ नहीं पा रहे, तब आप इसे परमेश्वर के राज्य के लिए एक अच्छा बांधकाम, इस देश को अच्छे से बांधकाम कर सकते You हो। can be a Zerubbabel. आप एक जरुब्बाबिल बन सकते हो। You can crush that mountain. आप इस पहाड़ को चकनाचूर कर सकते हो। Hallelujah. Let's close your हम eyes. अपनी आंखों को बंद करें। Whatever may be your mountain, और चाहे कोई आपके जीवन में